आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, जो कि अक्सर किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया का आखिर फॉर्मेशन कैसे हुआ था। इनिशियली इट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, बट ड्यू टू सम टेक्टोनिक शिफ्ट्स इन द प्लेट्स it became a part of Eurasian plate. Okay, so तैथीस सीज को जो अनकवर करके कैसे करके इट बिकेम अ पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, और फर्दर इंडिया का क्या लोकेशन है हमारे ग्लोब में। ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स साइज, इट्स लोकेशन, ओके, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया का आखिर फॉर्मेशन कैसे हुआ था। देखो, अराउंड 100 million years ago India was part of Gondwana land. So as you can see over here, ये एक सुपर कॉन्टिनेंट है जिसे हम क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड। सो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, एंटार्क्टिक एंड ऑस्ट्रेलिया, Antarctica and Australia were part of this supercontinent which we used to call Gondwana land. अब क्या हुआ, you can see over here Tethys Sea, okay, Tethys Sea और Eurasian continent plate, right? So क्या हुआ, because of certain tectonic shifts in the plates, ये इंडिया वाला पार्ट यहाँ शिफ्ट होने लगा, राइट, इधर शिफ्ट होने लगा, एंड इट इवेंचुअली बिकेम अ पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट। सो इट अब इट्स अ पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। सो आपको होप समझ आया होगा कि पहले इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था जिसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स, बहुत सारे कंट्रीज आते थे। एक कॉन्टिनेंट था बेसिकली जिसमें बहुत सारे कंट्रीज आते थे, जिसे हम गोंडवाना कहते थे। अब बाद में इसमें शिफ्ट हुआ because of certain changes in the plate movements. So it became eventually it has become a part of the Asian continent, right? फिर हमारे हिमालयस का भी इसी के साथ ओरिजिन हुआ, एंड हिमालयस आर, एज यू नो, द पार्ट ऑफ यंग, दे आर कॉल्ड एज यंगफोल्ड माउंटेन्स। लोकेशन ऑन द ग्लोब की बात करें तो वी नो दैट द होल एंटायर ग्लोब इज divided into two parts, and the central line which we see over here is basically known as the इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा, which lies at 0 degree latitude. अब इंडिया कहाँ पे लाई करता है, इंडिया लाइज ओवर हियर। सो दिस इज बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो इंडिया लाइज ऑन, this is equator, right? This is equator and this is tropic of cancer. So India lies on tropic of cancer, 23 and a half, which is written over here, 23 and a half north. Okay, and uh, the tropic of cancer passes through 8 Indian states, namely Gujarat, starting from Gujarat, then Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura, and Mizoram. So the 8 states are mentioned over here also, right? So you can see this. This is the Tropic of Cancer, and this one is Tropic of Capricorn. Okay. So India lies in the northern hemisphere on the Tropic of Cancer, which is dividing it into two parts. Now, when we talk about its size, its area is around 3.38 million square kilometer. Okay, so this is the area of India. So if a certain type of question is asked in the exam, you can easily write about this. So it covers around 2.4% of world's area. Okay, so when we talk about the entire area of the globe, so India is covering 2.4% of it, and it is the 7th largest country in the world in terms of area. Okay, so which country has the largest area? किसका सबसे ज़्यादा area है? It is Russia, which is being followed by Canada and US, then China. So Russia has the largest area. Okay, it's biggest in area, followed by Canada and US. Its boundary, if we talk about land boundary of India, it's 15,200 kilometers, and the coastal boundary, coastal, we know that the southern India is basically covered by the coastal plains. Okay, so eastern coastal plains and the western coastal plains, bounded by the western Ghats and the eastern Ghats. So it is around 7517
kilometers. The distance from Kashmir to Kanyakumari is 3214 kilometers, whereas from Gujarat to AP is 2933 kilometers. Okay, so when we talk about its distance from north to south, it's more than east to west. Okay, so Kashmir to Kanyakumari is 3214, whereas from Gujarat, that is from west to east or east to west, it's 2933 kilometers. Arunachal Pradesh, AP is Arunachal Pradesh. Now when we talk about its physical features of India, so this is very important. ये बहुत important है. देखो 6 हिस्सों में इंडिया को बांटा गया है बेसिस on the basis of its the characteristics depending on the temperature, the climate, the weather, everything, right? It's altitude and all. When we talk about the Himalayas, so Himalayas are the young-fold mountains. They basically lie on the northern side of the country, okay, northeastern side of the country, and it also stretches till Tibet and Nepal. Okay, the Himalayas, the northern plains, okay, northern plains, as you can see on the map, in the map, the northern plains over here, and here it's the Himalayas. So we are going to talk about Himalayas कितने parts में divided है. The peninsular plateau, see, this is the peninsular plateau. It consists of 2 parts, Central Highland and the Deccan Plateau. Okay, so this is basically a triangular shape that you can see over here. So this is Central Highland and this Deccan Plateau. Then there is Indian Desert. Indian Desert, predominantly the Thar Desert. Okay, the coastal plains is very simple. See, this one is the eastern coastal plain and this one is the western coastal plain. So they are bounded by the Western Ghats and the Eastern Ghats. And then we have the islands. Islands are basically Lakshadweep. There's Lakshadweep over here. The capital is Kavarati, and Andaman and Nicobar lies on the Bay of Bengal, and the capital is Port Blair. So remember, these are very important things that you should know for the exam. Then only you will be able to give the exam properly. So the Himalayas. Now Himalayas, as I said before, Himalayas are basically divided in further important parts. Okay, so how were they formed? कैसे form हुए थे? जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया पहले पार्ट हुआ था गोंडवाला लैंड का हुआ करता था, राइट? सो इट वाज नथिंग बट अ वेरी सुपर कॉन्टिनेंट, अ कॉन्टिनेंट इन विच देयर वाज अंटार्कटिका, देयर वाज अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल. तो इंडिया उससे अलग हुआ और यूरेशियन पार्ट की तरफ शिफ्ट हुआ और उसका पार्ट बन गया. द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज 2500 किलोमीटर्स. सी, व्हेन वी टॉक अबाउट हिमालयाज अगर ओवरऑल देखें तो ईस्ट टू वेस्ट उसकी जो लेंथ है, जैसे कि ईस्ट कहाँ से शुरू होगा, अपना अरुणाचल प्रदेश वगैरह से और पूरे नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर तक जाएगा, तो 2500 किलोमीटर लेंथ है उसकी लंबाई. विड्थ 150 किलोमीटर बहुत कम भी है अरुणाचल प्रदेश में, 400 किलोमीटर तक भी है जम्मू एंड कश्मीर में. सो दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ये 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, द ट्रांस हिमालयास और द तिब्बतियन हिमालयास. ओके, क्योंकि इन्हें तिब्बतियन हिमालयास इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका मोस्टली हिस्सा कहाँ है, तिब्बत में है, विच इज अ पार्ट ऑफ चाइना. नाउ वी नो. ग्रेटर हिमालयास की बात करें, हिमाद्री भी बोलते हैं इन्हें, और लेसर हिमालयास हिमांचल, देन आउटर हिमालयास और द शिवलिक्स. जो ट्रांस हिमालयास होते हैं उसके बारे में अभी जानेंगे कि उसमें कौन कौन से रेंजेस आती हैं. ग्रेट हिमालयास इंडिया में है मोस्टली, और नेपाल में भी कुछ हिस्सा है इसका. ओके, लेसर हिमालयास हिमाचल, इधर हिल स्टेशंस बेसिकली वैलीज यहाँ पे आते हैं, और आउटर हिमालयास उनकी कम हाइट होती है. ये हम डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं. ट्रांस हिमालयास की बात करें तो देखो, ट्रांस हिमालयास मोस्टली तिब्बत के एरिया में है. काराकोरम, लद्दाख, झस्कार रेंजेस, अगर हम रेंज मतलब पर्वतों की बात करें तो ये इंडिया में है. कैलाश रेंज आपके तिब्बत में है, कैलाश मानसरोवर वगैरह. ग्रेट हिमालयास की बात करते हैं तो उनकी जो ग्रेट हिमालयास हैं उनकी एवरेज हाइट 6000 किलोमीटर है, और इसमें जितने भी प्रोमिनेंट पीक्स हैं, चोटियां हैं, पर्वत हैं, वो इसमें ही हैं ग्रेट हिमालयास में. माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 8848 मीटर जिसकी हाइट है. कंचनजंगा इंडिया में ही है. धौलागिरी नेपाल, नामचा बरवा नेपाल, नंदा देवी इंडिया में है. तो ये आपको याद रखना है कि जो ट्रांस हिमालयास की कौन कौन सी हैं, काराकोरम, लद्दाख, झस्कार, कैलाश, मानसरोवर. लेकिन जो ग्रेट हिमालयास जिनको हम क्या बोलते हैं,
हिमाद्री भी बोलते हैं, उनके जो मेजर पीक्स हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट इज द सबसे ऊंची जो है आपकी पीक है, नेपाल में है। कंचनजंगा इंडिया में है, सिमिलरली कुछ नेपाल में है, धौलागिरी, नामचा, बरुआ, नंगा पर्वत वगैरह। नंदा देवी है इंडिया में, राइट। अब बात करते हैं द लेसर हिमालयज और द हिमांचल की। तो देखो इनकी हाइट कम है ऑब्वियसली, बिकॉज दे लाई साउथ टू द हिमाद्री और द ग्रेट हिमालयज। तो 3000 से 4000 किलोमीटर हाइट है, और इनमें बहुत बढ़िया बढ़िया हिल स्टेशंस और बहुत सारी वैलीज और बहुत सारी रेंजेस भी हैं, पीक्स भी हैं। पेर पंजाल रेंज, धौलाधर, महाभारत रेंज इसमें है। इनकी हाइट ऑब्वियसली कम है। कुल्लू कांगड़ा वैली, आपकी कुल्लू वैली, कश्मीर वैली, ये सारे इसके पार्ट हैं। आउटर हिमालयस की बात करें, देखो हम जिस सीक्वेंस में बात कर रहे हैं इसमें हाइट बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट। हाइट की रेंज में, और विड्थ उसका फैक्टर है। उसके बाद बात करते हैं आउटर हिमालयस की। तो इसमें बहुत कम हाइट होती है, एक मोस्टली 1 किलोमीटर तक की हाइट है। और इसमें जितने भी दून्स आते हैं ना, देहरादून हो गया, पातली दून हो गया, कोटली, ये सारे इसमें आते हैं। बहुत कम इनकी हाइट होती है, और इनका जो रॉक्स वगैरह हैं वो भी बहुत ही अलग किस्म की होती है। जैसे अगर बिल्कुल आपके ट्रांस हिमालयस की बात करें, वहाँ पे ग्रेफाइट की होती है, फिर बीच में सेडिमेंट्री और अलग अलग फॉर्म्स की रॉक्स होती हैं, या उनके स्टोन्स जो वहाँ पे पाए जाते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स की हम बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन ऑब्वियसली आउटर हिमालयस, यानी कि जो सबसे कम वाला हिस्सा हिमालय का, शिवलिक्स, जहाँ पे दून्स हैं हमारे, वो उसके नीचे, उसके साउथ में होगा, है ना। तो इस जो नॉर्दर्न प्लेन है एक ट्रांजिशनल जोन का काम करता है, किसके बीच में, पेनिनसुलर इंडिया के बीच में। जैसे पेनिनसुलर इंडिया है जो कि डेक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड से बना हुआ है, उसके ऊपर वाला हिस्सा क्या है आपका, नॉर्दर्न प्लेन है। अब नॉर्दर्न प्लेन क्या है बेसिकली, देखो जितनी भी हमारी रिवर्स आती हैं, अगर हम बात करें नॉर्दर्न एरियाज से, जैसे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। गंगा रिवर सिस्टम आपका उत्तराखंड से स्टार्ट होता है, राइट। भागीरथी राइजेस फ्रॉम गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर। देन सिमिलरली देयर इज यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर। इंडस आपकी तिब्बत से आपके कैलाश मानसरोवर रेंज से निकलती है, राइट। कैलाश रेंज से इट एंटर्स जम्मू कश्मीर से, इट एंटर्स इनटू इंडिया, इंडस, राइट। इंडस की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि पाकिस्तान में मिलके फिर मिल जाती हैं, सारी इंडस बनती है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ऑल्सो फ्रॉम द कैलाश रेंज, तिब्बत। तो बेसिकली ये जो रिवर्स हैं ये अपने डिपॉजिट, जो इनके डिपॉजिट्स होते हैं उनको अपने नॉर्दर्न प्लेन्स पे इकट्ठा करती है, तो वो एरिया क्या हो जाता है, बहुत फर्टाइल हो जाता है। तो अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, तो पंजाब प्लेन्स इसमें आ जाते हैं, गंगा प्लेन्स आते हैं, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आते हैं। तो पंजाब प्लेन्स की हम बात करें तो यहाँ पे इंडस की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो फॉर्म करती हैं अपने एलुवियल डिपॉजिट्स, ठीक है। तो इसका लार्जर पार्ट, जैसे कि हमें पता है पाकिस्तान में है इंडस नदी का, लेकिन कुछ पार्ट जो इंडिया में है, राइट, उसके जो एलुवियल डिपॉजिट्स हैं उनको वहाँ पे पंजाब प्लेन्स में वो डिपॉजिट करती है। गंगा प्लेन्स की बात करें तो गंगा, घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में ये आता है, ओके। और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, तो ये वाले एरियाज में आपके बेसिकली मतलब फर्टाइल लैंड, बहुत ही फर्टाइल होता है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स अपने जो सेडिमेंट्स हैं, अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, और वो लैंड बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए फीजिबल है। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की बात करें तो यह आसाम रीजन में मेनली लाई करता है, बिकॉज ब्रह्मपुत्र नदी जो है इंडिया में एंटर करती है आपके अरुणाचल प्रदेश से, एंड इट मेनली गोज टू आसाम एंड देन फाइनली इट ड्रेन्स टू बे ऑफ बंगाल, ओके। नाउ पेनिनसुलर प्लेटू की अगर हम बात करें, देखो पेनिनसुलर प्लेटू, अभी हमने क्या क्या बात की है, अभी हमने हिमालयस की बात की थी, ट्रांस हिमालयस, राइट। ट्रांस हिमालयस उसके पार्ट थे, ठीक है, तिब्बत वाला पार्ट। उसके बाद आपका जो ग्रेटर हिमालयस, हिमाद्री, फिर आपका आउटर हिमालय, देन लेसर हिमालय, एंड देन द आउटर हिमालय की हमने बात की थी। उसके बाद हमने नॉर्दर्न प्लेन्स की बात की, जिसमें काफ़ी सारे स्टेट्स आते हैं। नदी यहाँ पे अपने एलुवियल डिपॉजिट्स करती है और डिपॉजिट करती है। उसके बाद हम अब बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेटू की। तो देखो पेनिनसुलर प्लेटू, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है सेंट्रल हाईलैंड्स, ये वाला है डेक्कन प्लेटू है, ये वाला एरिया है बेसिकली, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू का एरिया। तो इसके अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स आते हैं, काफ़ी सारी हिल्स आती हैं, अरावली हिल्स, राइट।
अरावली हिल इसका पार्ट है। गुरु शिखर जो कि इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, जो कि राजस्थान में है, राइट। नर्मदा नदी इसके बीच में ही लाई करती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। डेक्कन प्लेटू में काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, राइट, तो मध्य प्रदेश वगैरह, तो ये सारे डेक्कन प्लेटू का पार्ट है। और ये बहुत ही पुराने, सबसे पुराने बेसिकली कह सकते हैं पुराना लैंड मास इंडिया का। ओके, जब इंडिया किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ये तब से हैं, राइट। दे आर नॉट न्यू, जैसे हिमालयाज टकरा के बने थे यूरेशियन प्लेट से, लेकिन ये नए नहीं हैं, ये पुराने हैं। ओके, अब बात करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। देखो, अब कोस्टल प्लेन्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो, डेक्कन प्लेटू को के बगल में आपको ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स दिख रहे होंगे। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स बेसिकली दे आर अब जस्ट बिसाइड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल एरिया के बगल में है ना, बिल्कुल ये कोस्टल लाइन है, बिल्कुल समुद्र से लगी हुई, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल लाइन और वेस्टर्न कोस्टल लाइन। तो उसके बगल में ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स हैं। तो आपके इसमें काफ़ी सारी पीक्स हैं, बहुत सारी छोटे छोटे हाइट के पीक्स हैं, चोटियाँ हैं, रेंजेस हैं। तो यहाँ पे अनाईमुड़ी की बात करें या फिर कोई धौलाधर की, ये सारी इसकी सबसे ऊंची जो है पीक्स हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स की। उसके बाद जब हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की, तो कोस्टल प्लेन्स में बेसिकली आपके कोस्टल स्टेट्स जो हैं, जैसे केरल एक कोस्टल स्टेट है, राइट, ये केरला है, ये आपका हो गया कर्नाटका हो गया, ये गोवा हो गया, और ये महाराष्ट्र हो गया। तो देखो, जो ये मालाबार कोस्ट है ना, सिर्फ केरल की कोस्ट को कहा जाता है, मतलब केरल के कोस्ट को अगर हम बोलना चाहें तो मालाबार कोस्ट कहेंगे। वैसे ही आपके कर्नाटका के, गोवा के और महाराष्ट्र के कोंकण कोस्ट, वैसे गुजरात के काठियावाड़ कोस्ट, राइट। वैसे तमिलनाडु यहाँ पे आ गया, तमिलनाडु को कोरोमंडल कोस्ट कहेंगे, इधर से कोरोमंडल कोस्ट, राइट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को उधर ही, इधर उड़ीसा को क्या कहेंगे, उत्कल कोस्ट। फिर नॉर्दर्न सिरकार्स यहाँ पे होते हैं वेस्ट बंगाल के पास। तो बेसिकली ये हमारा कोस्टल प्लेन्स का हुआ। जैसे यहाँ पे भी वो डायग्राम बनाया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये देखो मालाबार कोस्ट कौन सा, केरल वाला है, और ये जो कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र वाला है कोंकण कोस्ट, और काठियावाड़ कोस्ट कौन सा हो गया आपका, ये वाला, और ये वाला कच्छ का हिस्सा हो गया। ये कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का हो गया, और नॉर्दर्न सिरकार उड़ीसा, ओके, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, और उत्कल प्लेन, उत्कल कोस्ट कहते हैं आपके उड़ीसा के कोस्ट को, राइट। सो ये आपको याद रखना है। और आपको ये तो समझ आ गया होगा कि डेक्कन प्लेटू, जो पेनिनसुलर प्लेटू कौन से एरिया में आता है, ये वाला एरिया बेसिकली ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के ऊपर वाला एरिया, ये वाला, जिसमें सेंट्रल हाईलैंड्स और आपके डेक्कन प्लेटू आ जाते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।